इमोशनल डिटैचमेंट का मतलब ये नहीं कि लाइक यू आर कोल्ड. That is actually your power, because see, सबसे confident woman is not someone who's always loudest. The confident woman is someone जिसको पता है कि like when she have to walk out and when she have to like take a stand for herself. That is literally the most confident woman, not someone who's like always loudest. And so many people think and so many people preach this idea कि like detachment मतलब कि you should not care. That is not what detachment means. Obviously you will care, right? Like let's say you have your career, right? You will care for your career, right? Let's say you are in a relationship, you will care for your partner. Detachment doesn't mean कि like तुम्हें फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हारे लाइफ में क्या हो रहा है, या तुम जिसके साथ रिलेशनशिप में हो लेट्स से, तो उस रिलेशनशिप में क्या हो रहा है. दैट डजंट मीन कि लाइक दैट इज डिटैचमेंट. डिटैचमेंट मतलब ये है कि लाइक तुम्हारी वैल्यू दूसरे लोगों पे डिपेंडेंट नहीं है. Like for example, right, when you're attached to someone, you constantly need someone to tell you, right, that let's say like you constantly need someone to validate your action, right, validate your morals, right, validate the way that you think, your mindset, everything. Like detachment मतलब ये sorry, attachment मतलब ये है कि like मुझे तुम्हारी जरूरत है, like without you nothing will work out. एंड डिटैचमेंट उसका पूरा अपोजिट है. डिटैचमेंट मतलब कि लाइक आई चूज यू, बट इसका मतलब ये नहीं है कि लाइक लेट्स से किसी दिन तुम मेरे लाइफ से चले जाओ, देन ऑल ऑफ अ सडन माई लाइफ विल स्टॉप, राइट? दैट इज detachment. So detachment is like you care for others, you feel deeply for others, right? You genuinely want your partner to grow, or like you want yourself to grow, but it's just that उनके जाने से तुम्हारी लाइफ में कोई फर्क नहीं पड़ेगा. ऑब्वियसली यू विल बी सैड, राइट? ऑब्वियसली यू विल बी हार्ट ब्रोकन, बट अदर देन दैट इट्स नॉट लाइक तुम्हारी लाइफ सडनली बंद हो जाएगी. You know, your life will still go on, you will still go on, you will grow. So that is what the real meaning of detachment. For example, right, like let's say तुमने किसी को टेक्स्ट किया, right, and now उन्होंने तुम्हें क्या रिप्लाई दिया, उन्होंने तुम्हें कितने देर बाद रिप्लाई दिया, उन्होंने क्या तुम्हें 1 मिनट बाद रिप्लाई दिया या 1 घंटे के बाद रिप्लाई दिया, राइट? उनका टोन क्या था रिप्लाई देने का? तुम्हारा मूड उस सब चीजों पे डिपेंड करता है. लाइक लेट्स से तुमने मेरे को टेक्स्ट किया, राइट? अब मैंने तुम्हें इंस्टेंटली रिप्लाई दिया, देन यू विल बी हैप्पी. अगर मैंने तुम्हें लेट रिप्लाई दिया, देन यू विल बी लाइक स्पाइरलिंग कि लाइक पता नहीं मैंने ऐसा क्या बोल दिया कि वो मेरे को इतना लेट रिप्लाई दे रही, लाइक व्हाट इज हैपनिंग, ब्ला 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 ब्ला. एंड एज अ रिजल्ट तुम्हारा मेंटल पीस मेरे पे डिपेंड है कि मैं कितना फास्ट तुमको रिप्लाई देती हूँ. बट दिस इज रॉन्ग, राइट? बिकॉज योर इमोशनल वेल बीइंग इज डिपेंडेंट ऑन समवन एल्स. Like they have the power to make you happy, to make you depressed. Like it's up to them. Trust me, feminine detachment is actually attractive because first of all, it doesn't make you available 24 into 7. एंड सी, आई नो मोस्ट ऑफ द पीपल विल बी लाइक, तो इसका मतलब ये क्या कि अगर हमें किसी को हमारी जरूरत है तो हमें उनके लिए नहीं होना चाहिए, हमें उनकी मदद नहीं करनी चाहिए. नो, तुम करो ना मदद, तुम उनके लिए रहो अवेलेबल, बट क्या तुम्हें अपना शेड्यूल, अपना गोल सैक्रिफाइस करके तुम्हें उनके लिए अवेलेबल रहना है? दैट इज द प्रॉब्लम. बिकॉज सी, our human nature, we should be actually grateful for people who are always available for us, right? Like let's say you are available for me all of the time, right? Like whenever I call you, you're always there. Whenever I text you, you're always there. I should be grateful for you, but instead we take these type of people for granted, right? If you're always available for everyone, they will obviously take you for granted. They will obviously think कि like अरे इसके पास तो टाइम ही नहीं है, मैं जब इसको कॉल करूंगी अवेलेबल रहती है, मैं जब इसको टेक्स्ट करूंगी अवेलेबल रहती है, like इसका खुद का कुछ लाइफ ही नहीं है, right? This is what they think.
एंड अगर तुम किसी के लिए उतना अवेलेबल नहीं रहोगे, देन दैट विल create scarcity in their life, and then they will be like, oh my god, ये उतना अवेलेबल नहीं रहती है, इसकी खुद की भी लाइफ है, विच इज गुड, राइट? एंड उसके वजह से दैट विल क्रिएट अ मिस्ट्री, राइट? एंड दे विल स्टार्ट वैल्यूइंग योर टाइम, दे विल स्टार्ट वैल्यूइंग यू, बिकॉज उनको पता है कि लाइक तुम हमेशा अवेलेबल नहीं रहते, तुम्हारा खुद का भी लाइफ है, तुम्हारे खुद के भी गोल्स है, सो एज अ रिजल्ट वो तुमको फॉर ग्रांटेड नहीं लेंगे. दिस इज वाई डिटैचमेंट इज अट्रैक्टिव. इट ऑल्सो रिमूव्स योर डेस्परेट एनर्जी, बिकॉज अगर तुम हमेशा लाइक लेट्स से मैं तुम्हें जब भी टेक्स्ट कर रही हूँ, राइट, लाइक लेट्स से, राइट, फॉर एग्जाम्पल तुम किसी लड़के से बात कर रहे हो, यू आर टेक्सटिंग अ गाय, राइट, एंड यू आर वेटिंग फॉर हिज टेक्स्ट, यू आर वेटिंग फॉर हिज रिप्लाई. तुमने उसको एक क्वेश्चन पूछा, राइट, यू हैव अ क्रश ऑन हिम एंड यू आर वेटिंग फॉर हिज रिप्लाई, एंड जैसे ही उसने रिप्लाई किया वैसे ही तुम उसको वापस से टेक्स्ट बैक कर रहे हो एंड एवरीथिंग, राइट? दिस शोज दैट यू आर डेस्परेट. दिस शोज कि लाइक you have that desperate energy. I'm not saying कि like don't text them back. Obviously text करो उनको, but उनके efforts क्या है वो देखो. Like let's say सामने वाले को तुम्हारी कुछ पड़ी नहीं है, सामने वाले को कुछ फर्क ही नहीं पड़ता कि लाइक तुम्हारे लाइफ में क्या चल रहा है क्या नहीं. लाइक लेट्स से दैट गाय डजंट लाइक यू, देन व्हाट्स द पॉइंट ऑफ बीइंग डेस्परेट इन फ्रंट ऑफ हिम, राइट? लाइक लेट्स से अगर वो लड़का भी उतना ही एफर्ट देता है उस रिलेशनशिप में, उतना ही एफर्ट देता है तुमको टेक्स्ट करने के लिए, तुमको कॉल करने के लिए, 100% गिव योर बेस्ट whenever you're talking to him, whenever you're putting efforts, give your best. But if that person is not putting any efforts, then why are you bothering to be desperate? Emotional control is more attractive than your physical beauty. And see, so many women, they are afraid of detachment because उनको ऐसा लगता है कि लाइक अगर मैं डिटैच रहूंगी, राइट, अगर मैं खुद को हमेशा चूज करूंगी, देन पीपल विल लीव मी. दैट इज फियर ऑफ अबैंडनमेंट. एंड सेकेंड इज समटाइम्स हम पोटेंशियल को ओवर रोमांटिसाइज करते हैं, राइट? लेट्स से यू आर विद अ गाय, राइट, लाइक फॉर एग्जाम्पल यू आर विद अ गाय, है ना, एंड you are with him because he could be a romantic person, he could be a nice guy, he could care for me, like see, he could, वो कर सकता है, पर क्या वो कर रहा है? नहीं. That is like you are romanticizing his potential कि वो वैसा चेंज हो सकता है, but why would he change for you? And why do you want to change him? Why do you want to fix him? You're not a mechanic. And he's not something broken जिसको तुम अपने हिसाब से fix कर लेते हो. That is just so misleading. You can never fix anyone, right? उनकी माँ उनको नहीं बदल पा रही है. Like, why do you think कि you would change him? Right? And see, किसी का पर्सनालिटी चेंज करना इज नॉट इजी. इट्स नॉट कि लाइक ओ मैंने एक बार उसको बता दिया कि मेरे को ये चीजें नहीं पसंद तो वो वैसा नहीं करेगा. नहीं, ऐसा नहीं होता. अगर उसकी पर्सनालिटी ही वैसी है, अगर उसकी पर्सनालिटी ही वैसी है कि लाइक उसको ज्यादा एफर्ट्स डालना नहीं पसंद, राइट, लाइक उसकी पर्सनालिटी ही वैसी है वेयर ही इज नॉट केयरिंग, तो तुम कुछ भी कर लो वो नहीं चेंज होगा. And that is the truth. And the third reason why women, they fear detachment is because उनको ऐसा लगता है कि like the constant anxiety is love, right? Like we all have experienced this in our life, right? Constant anxiety, like you are constantly desperate, you are constantly लाइक ओ माय गॉड, पता नहीं वो मेरे बारे में क्या सोचेगा, उसने मेरे को टेक्स्ट किया कि नहीं, उसने मेरे को रिप्लाई किया कि नहीं, लाइक मैं उसको टेक्स्ट करूँ क्या, लाइक डबल टेक्स्ट तो नहीं हो जाएगा, लाइक ओ माय गॉड वो पता नहीं लाइक क्या सोच रहा है, वो एफर्ट देगा नहीं देगा. लाइक वी आर कॉन्स्टेंटली वरिंग एंड वी थिंक कि दिस इज लव, कि लाइक प्यार में तो यही होता ही है, लाइक यू हैव टू बी एंग्शियस ऑल द टाइम, बट दैट इज नॉट लव. लव इज स्टेबल, राइट? लव इज नॉट समथिंग कि लाइक तुम्हें हमेशा एंग्शियस होना पड़ेगा. दैट इज नॉट लव.
हमारे दिमाग में उनका जैसा वर्जन है, हम खुद को उसी से अटैच कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल राइट, हम जब भी किसी से मिलते हैं, हम जब भी किसी को देखते हैं, हमारे मन में एक इमेज बिल्ड हो जाती है उस पर्सन के अराउंड। लाइक लेट्स से यू सी अ गाय हु इज गुड लुकिंग, एंड एज अ रिजल्ट बिकॉज ही इज गुड लुकिंग हम उसको कनेक्ट कर लेते हैं कि लाइक उसका नेचर भी अच्छा होगा। गुड लुकिंग इज इक्वल टू गुड नेचर, ये हमारे दिमाग में फिट हो जाता है। एंड इस वजह से क्या वो सच में गुड नेचर है उसका, वी डोंट नो, क्योंकि हमने कभी उससे बात ही नहीं की है। इस एक्सपेक्टेशन के वजह से वी सफर मोस्ट ऑफ द टाइम, बिकॉज नाउ वी आर लाइक ओ माई गॉड ये दिखने में वैसा है, या मुझे ऐसा लगता है कि वो वैसा होगा तो वो वैसा ही होगा। फिर हम उस इमेज से अटैच हो जाते हैं, एंड फिर जब हम उनसे बात करने लगते हैं तो समझता है कि लाइक वो उस इमेज से दूर दूर का उनका कोई नाता नहीं है। And then we still stay because we are like, maybe one day he would actually fulfill that image. फर्स्ट थिंग फर्स्ट, सबसे पहले अपने इमोशंस कंट्रोल करना सीखो। बिकॉज लुक, जब भी हम इमोशनल होते हैं राइट, लेट्स से यू आर डिप्रेस्ड, यू आर एंग्री, यू आर सैड, यू आर हार्ट ब्रोकन, और यू आर टू मच हैप्पी, इवन इन दैट केस हम इमोशनल होकर डिसीजन लेते हैं। एंड मोस्ट ऑफ द टाइम जब भी हम इमोशनल होकर डिसीजन लेते हैं, तब हम उसको रिग्रेट करते हैं आगे चल के उस डिसीजन को। इसलिए वेन एवर यू आर इमोशनल, don't take any decision. Literally don't take any decision. Like just calm down, breathe, and then you look at the situation, right, कि क्या हो रहा है from a different point of view, and फिर तुम decision लो। That is how you can detach from whatever the situation that is happening in your life. And always remember कि like there were so many moments right तुम्हारे past में where you thought कि like बस हो गया भाई, अब survive नहीं हो सकता भाई, like this is like you are done with whatever that is happening with your life, and that तुम्हारी life होगी भाई, खत्म हो गई भाई इधर ही। पर तुम still आगे आए, तुम्हारी ग्रोथ हुई। So always keep that in your mind whenever you are in a very sad place, right? Like whenever we think like nothing's going to work out, उसके बाद something happens and it works out, and उसके बाद you look back and you think like अरे भाई ये इतना छोटा सा ही प्रॉब्लम था and मेरे को लगा कि वर्कआउट नहीं करेगा। So see, always trust that you will get through it. And the second thing is, and this is the most important thing, is reduce oversharing. अगर तुम्हें अपने लाइफ के बारे में किसको बताना है, किसी को नहीं बताना है, वो तुम्हारा डिसीजन है, राइट? यू डोंट हैव टू शेयर एवरीथिंग दैट्स गोइंग ऑन इन योर लाइफ जस्ट बिकॉज लोगों को ऐसा लगेगा कि लाइक तुम रूड हो अगर तुम शेयर नहीं कर रहे हो। तो क्यों करना है ना, वो तुम्हारे पे डिपेंड करता है। लाइक तुम्हारे लाइफ में अगर कुछ अच्छा चल रहा है, वो अच्छा तुमको बताना है लोगों को, तुम्हारा डिसीजन, तुम्हें बताना है बताओ, नहीं बताना है मत बताओ, राइट? कीप सम थिंग्स प्राइवेट। लाइक हर चीज तुम्हारे लाइफ में, हर छोटी से छोटी चीज तुम्हारे लाइफ में क्या मतलब क्या चल रहा है तुम्हारे लाइफ में, वो हर किसी को बताना इज नॉट इम्पॉर्टेंट एंड इट्स नॉट नेसेसरी। एंड इफ यू आर डूइंग दिस देन स्टॉप डूइंग इट, बिकॉज फर्स्ट ऑफ ऑल इंटेंशंस मैटर अ लॉट। तुम उनको अपने लाइफ के बारे में ये सोच के बताते हो कि लाइक क्योंकि तुम चाहते हो कि लाइक वो लोग भी खुश रहे, ये सुन के कि तुम्हारे लाइफ में सब अच्छा चल रहा है। पर क्या वो खुश है, क्या वो रियली खुश होंगे, ये इंपॉर्टेंट है। लाइक इन माई केस राइट, आई हैड दिस फ्रेंड वंस एंड आई यूज्ड टू टेल हर एवरीथिंग। मेरे लाइफ में कुछ भी अच्छा चल रहा है, कुछ भी बुरा चल रहा है, या मैंने लाइक लेट्स से आई प्लान समथिंग राइट, कि मैं अब ये करूंगी, मैं वो करूंगी, मैं सबसे पहले जाके उसको बताती थी कि लाइक आई यूज्ड टू थिंक लाइक बिकॉज वो मेरी फ्रेंड है, एंड यू आर सपोज टू टेल योर फ्रेंड्स एवरीथिंग, राइट? नो, you are not supposed to tell everything to your friend. ये चीज I thought, I used to think this way at that time, and that is where सारा सब खराब हो गया। So don't think that just because they are your friends, you need to tell them everything. नहीं, if you want to keep something private, keep it. So off topic चले गए, but yes, I used to tell her everything, and then suddenly like let's say मैंने आज उसको बताया कि like मैं कल
ड्राइविंग लाइसेंस का प्लान कर रही हूँ एंड मैं कल जा रही हूँ ड्राइविंग सीखने के लिए, फॉर एग्जाम्पल। एंड देन सडनली उसको बताने के बाद कुछ तो भी होगा भाई, कुछ तो होगा कि लाइक ऑल ऑफ अ सडन मैं नहीं जा पाई, मेरा प्लान सब फुस हो गया। यही like see, this is why intention matters a lot. And after I stopped talking to her, right, and then I realized that she was always jealous. Whenever something good used to happen in my life, she used to feel jealous, and whenever something bad used to happen in my life, she used to feel very excited. She was very like ऑल ऑफ अ सडन कतई उसके जिंदगी में मोती झड़ने लग गए अगर मेरी लाइफ में लेट्स से आई एम इन अ ट्रबल और आई एम स्ट्रेस्ड, आई एम एंग्शियस, राइट। वो सुन के वो इतनी खुश हो जाती थी कि लाइक उसके उसकी जिंदगी लाइक पूरी जिंदगी फिगर आउट हो गई भाई। उसको पूरा हमारे ब्रह्मांड का जो भी राज है उसको सब राज पता चल गया। लाइक कतई उसने भगवान देख लिया, ऐसा वो करती थी। सो लेटर ऑन आई रियलाइज कि लाइक शी वॉज जेलस, एंड बिकॉज शी वॉज ऑलवेज जेलस, ऑब्वियसली अगर मैं उसको कुछ बोलूंगी तो ऑब्वियसली दैट थिंग वुडंट वर्क आउट। सो दिस इज वाई आई एम सेइंग कि लाइक डोंट ओवर शेयर एवरीथिंग। अगर तुमको ऐसा लगता है कि लाइक तुम्हें कुछ कोई चीज प्राइवेट रखनी है, कीप इट प्राइवेट। एंड आई थिंक नो मैटर कोई भी बंदा तुमसे कितना क्लोज हो, राइट, things related to your career, things related to your love life, things related to your finances, things related to your family, or like problems going on in your personal life, you need to keep it private, राइट। और ऑब्वियसली तुम अच्छा सोच के अपने फ्रेंड्स को बताते हो ना कि लाइक तुम्हारा बंदा तुमको कितना अच्छे से ट्रीट कर रहा है, पर इसकी क्या गारंटी कि लाइक दे आर हैप्पी लिसनिंग टू इट। व्हाट इफ दे आर जेलस ऑफ यू, व्हाट इफ दे थिंक लाइक यू डोंट डिजर्व अ गाय लाइक दैट, राइट, एंड दे डिजर्व समवन लाइक हिम। इसीलिए लाइक मेजर लाइक जो क्या बोलते हैं मेजर मेजर डिटेल्स जो होता है कि लाइक समथिंग दैट इज प्राइवेट, राइट, डोंट शेयर इट। हाँ, ऊपर ऊपर का उनको बता दो कि लाइक हाँ भाई मेरा रिलेशनशिप अच्छा चल रहा है, मेरा करियर अच्छा चल रहा है, मेरी पढ़ाई अच्छी चल रही है, घर में भी सब अच्छा चल रहा है, लाइक फाइनेंशियली भी सब अच्छा चल रहा है, यू नो। डोंट शेयर इट, don't overshare it. That is what I want to say. And the third thing is stop over explaining yourself. Like तुम अपने लाइफ में जो भी डिसीजन लेते हो, इट्स अप टू यू कि तुम्हें उसको एक्सप्लेन करना चाहिए किसको या तुम्हें उसको एक्सप्लेन नहीं करना चाहिए, राइट। लाइक फॉर एग्जाम्पल यू डोंट नो मी, आई डोंट नो यू, राइट, एंड इस वजह से मैं मेरे लाइफ में क्या डिसीजन लेती हूँ मुझे वो तुम्हें एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, एंड वाइस वर्सा। सो यही चीज दिमाग में हमेशा रखो, लाइक तुम अपने लाइफ में जो भी डिसीजन लो उसको ओवर एक्सप्लेन मत करो। फॉर एग्जाम्पल राइट, समवन टेक्सटेड यू एंड तुमने उसका रिप्लाई लेट देखा बिकॉज ऑफ वॉट एवर रीजन दैट यू हैव गोइंग ऑन, राइट। सो इंस्टेड ऑफ सेइंग कि लाइक सॉरी मैं बिजी थी इसलिए मैंने तेरा टेक्स्ट लेट ओपन किया, राइट, यू स्टार्ट ओवर एक्सप्लेनिंग। यू आर बीइंग लाइक अरे सॉरी यार मैं मम्मी के साथ बाजार गई थी तो वहां पे मेरे को नेटवर्क नहीं आ रहा था, फिर वहां पे थोड़ा दिक्कत हो गया, एंड फिर उसके बाद मैं घर आई, घर आने के बाद मैंने खाना खाया, खाना खाने के बाद मैंने थोड़ी देर मूवी देखी एंड तब जाके मैंने फोन देखा। वाई डू यू नीड टू ओवर एक्सप्लेन एवरीथिंग? एंड सी, अगर तुम किसी को ओवर एक्सप्लेन करते हो लाइक लेट्स से तुमने ये लंबा चौड़ा टेक्स्ट में बाजार गई थी, मूवी देख रही थी, पानी पूरी खा रही थी, नेटवर्क नहीं था, ब्ला 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 जो भी है वो सब तुमने एक लंबा चौड़ा पैराग्राफ लिख के तुमने एक्सप्लेन भी कर दिया सामने वाले को। उसकी तो परिस्थिति समझो, लाइक थिंक अबाउट व्हाट दैट पर्सन इज गोइंग टू थिंक अबाउट यू। Like even that person is going to be like, okay dude, chill, like you could have just said ki like you are busy, like why are you explaining so much, why are you writing me this long paragraph? इसलिए stop over explaining and see, अगर तुम बिजी हो तो इसमें कोई बुरी बात नहीं है कि लाइक अरे अब उसको कैसा लगेगा, क्यों, वो लोग अपने लाइफ में बिजी नहीं हो सकते। एंड सी, तुम तुमको कब किससे बात करनी है, एंड आई रिसेंटली लर्न दिस एंड ट्रस्ट मी दिस इज गोइंग टू सॉल्व योर प्रॉब्लम्स इफ यू एक्चुअली कीप दिस इन माइंड कि दिस इज योर लाइफ। योर लाइफ शुड रिवॉल्व अराउंड यू, नॉट देम।
You are not obligated to talk to everyone. You are not obligated to answer every text. Yes, you can choose कि किसको कब कैसी प्रायोरिटी देनी है, राइट? लाइक लेट्स अगर तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड है तो ऑब्वियसली तुम उसको ज्यादा प्रायोरिटी दोगे एज कंपेयर टू अदर पीपल. लाइक लेट्स से तुम्हारा बॉयफ्रेंड है तो ऑब्वियसली तुम उसको प्रायोरिटी दोगे एज कंपेयर टू अदर पीपल इन योर लाइफ, राइट? लाइक दैट इज फाइन, दैट इज ओके, बट इट्स बिकॉज यू आर चूजिंग टू, यू नो. लाइक तुम एक दिन उठ के ये भी डिसाइड कर सकते हो कि लाइक तुम्हें उनको टेक्स्ट नहीं करना बिकॉज तुम जरा मेंटली स्ट्रगल कर रहे हो, तुम डिप्रेस्ड हो या तुम्हारा मन नहीं है. दैट इज कंप्लीटली फाइन. You are not obligated to text them all the damn time. It's your life. You choose कि किसको कितना टाइम देना है, किसको कब टाइम देना है. जरूरी नहीं है कि लाइक तुम्हारे लाइफ में तुम्हारा जितना भी लाइक हर एक मिनट तुम्हें सबको देखते रहना है. अगर तुम दूसरों में एनर्जी डालोगे, दूसरों के लिए इतना एफर्ट करोगे, तो तुम खुद के लिए कब करोगे? इसलिए अपने डिसीजन को ओवर एक्सप्लेन करना बंद कर दो, क्योंकि तुमने कुछ सोच के डिसीजन लिया है ना, राइट? हाँ, ऑब्वियसली अगर तुम्हारा कोई क्लोज्ड वन है, लेट्स से योर पेरेंट्स, योर सिबलिंग्स, योर बेस्ट फ्रेंड, योर क्लोज फ्रेंड्स, राइट? इफ यू आर इन रिलेशनशिप, देन योर पार्टनर, ऑब्वियसली उन लोगों को तो यू विल एक्सप्लेन योर डिसीजन, बट it's up to you. You get to decide. That is what I'm saying. It's not like you're obligated. It's not like compulsory है कि तुम्हें सबको सब चीज एक्सप्लेन करनी है. नहीं. अगर तुम्हें like तुम let's say you wake up tomorrow and you are like, अरे शिक्षा, I don't want to explain कि like मैंने ये decision क्यों लिया. That is completely okay. That is completely fine. And that is how you practice detachment, because you know कि like तुम्हारा जो भी डिसीजन है या वट एवर दैट इज गोइंग ऑन इन योर लाइफ, तुमने सब सोच समझ के ही डिसाइड किया होगा. यस यस, ऑब्वियसली हो सकता है कि वो डिसीजन गलत निकले, बट ये भी तो हो सकता है कि वो डिसीजन सही निकले. एंड अगर वो डिसीजन लाइक से गलत निकल भी गया, देन nothing's bad going to happen. Like you wouldn't die because of that bad decision, right? Unless obviously don't take life threatening decision. I'm not talking about those type of decision. I'm talking about किससे तुमको कब बात करनी है, तुम्हारे करियर से रिलेटेड डिसीजन, तुम्हारे like let's say if you're in relationship, then उस relationship से रिलेटेड डिसीजन. I'm talking about those type of decision, right? नहीं तो फिर you will message, you will comment कि like अरे तूने ही तो बोला था कि like you wouldn't die because of your decision, and मैंने ऐसा life threatening decision लिया and now I'm dead. Obviously you couldn't message me because you're dead, but still I'm not talking about those type of scenarios, because see, people nowadays, they don't listen to the context that you are talking. They just listen and then they apply it, right? आधा आधी मतलब आधी अधूरी बात है सुन के वो डिसीजन लेते हैं, वो चीजें करते हैं, एंड फिर सामने वाले को ब्लेम करते कि अरे तूने ही तो बोला था. So इसलिए I'm clarifying it. I'm not talking about life-threatening decision, guys. I'm talking about decision related to your fitness, your purpose, your goal, your career, your friends, your time management, right? Those type of things. So वो तुम्हारा decision है. And अगर तुमने गलत decision ले भी लिया, then you will learn from that decision, right? Fourth is build a life outside romance. See, we all need love. We all need a partner. We all want someone who gets us, who cares for us, who loves us the way that we want, right? I get it, but that doesn't mean ki like that should be your entire life, or like your life should revolve around that thing, is what I want to say. Because see, अगर तुम्हारे लाइफ में तुम्हारा सारा ध्यान रोमांस पे है, राइट? तुम्हारा सारा ध्यान बॉयफ्रेंड ढूंढने में है, सारा ध्यान रिलेशनशिप में जाने के लिए, सारा ध्यान लाइक 100% अटेंशन तुम्हारा अपने बॉयफ्रेंड पे है, इफ यू हैव एनी, देन तुम्हारे लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा डिटैच होने के लिए उस चीज से. एंड सी, व्हाट आई वांट टू से इज लाइक, आई एम नॉट सेइंग कि अपने बॉयफ्रेंड को अटेंशन मत दो, ऑब्वियसली अटेंशन दो, बट उसको अपना पूरा लाइफ मत बना दो. लाइक फोकस ऑन
एक्सरसाइजिंग, राइट, फिटनेस, तुम्हारा करियर, फ्रेंड्स के साथ हैंग आउट करो, अकेले, लाइक इफ यू लाइक सोलो ट्रैवलिंग, राइट, इफ यू लाइक सोलो डेटिंग, देन गो, मतलब किसी कैफे में अकेले जाके बैठो, चाय पियो, कॉफी पियो, कुछ खाओ पियो, ऐश करो, लाइक रिलेशनशिप के अलावा भी तुम्हारे लाइफ में चीजें चल रही हैं, इज वॉट आई वॉन्ट टू से। क्योंकि अगर तुम्हारे लाइफ में बहुत सारी चीजें, राइट, लाइक तुम रिलेशनशिप में हो, तुम्हारा करियर भी है, फिटनेस पे भी ध्यान है, फिर यू ऑल्सो हैव फ्रेंड्स, यू ऑल्सो हैव फैमिली जिनके साथ तुमको टाइम स्पेंड करना, यू ऑल्सो हैव योर सिबलिंग्स जिनके साथ तुम्हें टाइम स्पेंड करना है, देन ऑब्वियसली इट बिकम्स easier for you to focus on your life as well, right? And see, nobody likes a partner, and trust me on this, nobody likes a partner जिसकी खुद की लाइफ ना हो। And come on, like imagine this, right? Like for example, you have a boyfriend जिसकी खुद की लाइफ है ही नहीं, वो हमेशा तुमको टेक्स्ट करता है, हमेशा तुम्हारे पीछे पड़ा रहता है, हमेशा लाइक करता मतलब बोलता रहता है कि किधर जा रही है, किसके साथ जा रही है, क्यों जा रही है, like he is always nagging. Wouldn't you hate that person? Obviously you would. Like अगर मेरे लाइफ में मेरी कोई फ्रेंड है या मेरा ही कोई बॉयफ्रेंड है जो मेरे को ऐसे हमेशा मेरे पीछे पड़ा रहता है, जब देखो तब मेरे को टेक्स्ट करता रहता है, उसकी खुद की कुछ लाइफ है ही नहीं, और अगर मेरी लाइफ है तो उसको वो भी पसंद नहीं, तो मेरे को तो गुस्सा आएगा ही ना उस पे, मैं तो छोड़ के निकल जाऊंगी, मैं तो आए तो विल बी लाइक ब्रो यू फर्स्ट बिल्ड योर ओन लाइफ एंड देन विल टॉक। सो यही है, बिल्ड योर ओन लाइफ एंड देन पुट दैट एनर्जी इनटू समवन एल्स। लाइक तुम जिस शिद्दत से दूसरों के लिए चीजें करते हो, अगर तुमने उसका 1% भी खुद के लिए करना शुरू किया ना, ट्रस्ट मी ऑन दिस, योर लाइफ विल बी सो मच बेटर, यू विल फील सो मच बेटर, राइट? अगर तुम डिटैच हो गए, इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हें किसी चीज से फर्क नहीं पड़ेगा, तुम्हें फर्क पड़ेगा, राइट? तुम सामने वाले बंदे को, यू विल लव हिम, यू विल केयर फॉर हिम, बट द ओनली डिफरेंस इज कि तुम्हें पता है कि उनके जाने के बाद तुम्हारी लाइफ रुकने वाली नहीं है, राइट? अगर लाइक लेट्स से कुछ ऐसा हुआ कि लाइक वो तुम्हारी जिंदगी से चले गए, यू नो, लाइक फॉर एग्जाम्पल तुम्हारा ब्रेकअप हो गया, या तुम्हारा अब एक दूसरे से उतना बन नहीं रहा, या यू डोंट हैव दैट स्पार्क एनी मोर इन योर रिलेशनशिप, ऐसा इशू आने के बाद भी तुम्हारी लाइफ नहीं रुकेगी उन लोगों के लिए, you will still live, you will still grow, you will still achieve success, and that is what the real meaning of detachment is. So that is it for today's video, and if you like my video then like, share and subscribe my channel, and remember guys, किसी के जाने से तुम्हारी लाइफ कोलैप्स नहीं होगी, चाहे तुम्हें वो कितना ही पसंद क्यों ना हो, तुम मूव ऑन होगे, तुम्हारे लाइफ में ग्रोथ होगी, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे तुम ही हो जो खुद के साथ रहोगे। Like people will leave, people will come, and the only person who is permanent is you. Is you handling all the situation? Is you going through all of this? Is you growing? And look at, there are so many people, right? जिनके पार्टनर्स ने उन पे चीट किया, जिनके पार्टनर्स उनको छोड़ के चले गए, यू नो, जिनके फ्रेंड्स टॉक्सिक निकल गए, क्या वो लोग आगे नहीं बढ़े लाइफ में? वो बढ़े, राइट? क्या वो अभी खुश नहीं जिंदगी में? नो, दे आर हैप्पी, यस। लाइक सी, obviously you will be sad for a moment because that person meant something in your life, obviously you will be sad, but uske baad you will recover and your life will not collapse. That is the thing about detachment. So we'll meet next time. Bye bye.